So what I was trying to say is like initially it was like the Boolean value can be either false or like true or false. So true stands for 1 and false go with the 0. And nowadays anything not that is not 0 is true and anything that is 0 is false. So we have seen 0 is false, 1 is true, true is true, and false is what? Suppose if I go with the non-zero, okay. So let's say if what can say, if let's say 23, okay, Okay. it will be just paste it away. If instead of 0 I say 23, okay, it is true. Okay, let's say if I go for 0.1 as well, 0.1, it is again true. So anything not 0 is true. Got it? Okay. Suppose if I write an expression or let's say, but it will not take characters, okay. So let's say if I give it here ABC, okay, it will not be taken, okay, it will not be taken, okay. Got it? Yes, bro. So Means any strings Non-zero. won't work. yeah, it won't work. Like for true and false, it will either take it as if you're writing in spelling form, it will take completely true, like complete true word, or completely false word. Or else if you want to go with the numerical numeric, you should either give it 1 or non-zero value for true, Okay. and for false you will go with the 0. Mm-hmm. So any expression, let's say, suppose if I say, let's say instead of let's say true and false, if I can give some condition as well, then also it will work. Okay, so let's say 0. So let's say, is my 2 less than 3? Is 2 less than 3? This is true, right? Okay. So this is true. Okay, so this part here is a Boolean expression. So Boolean, what does a Boolean expression mean? Like whether it will give me true or false. Okay. Any equation that will result in true and true or false statement is called as Boolean expression. Boolean expression. Okay. So we'll basically use only for the true and false now, bro. So Boolean का मतलब ये होता है like true and false. Only two values. Okay. Okay. Boolean. Okay. Got it, bro. So just in case if you guys forget someday, just how do you find it on internet? Chrome and this is like Boolean. SQL. Boolean is a data for which only two possible values, that is usually true and false. So that is usually true and false, or it can be 0 or 1, or it can be 0 and non-zero value. Can it accept negative values as well? Let's see. Can it take negative value as well? Let's see. It is again true. Okay. Any non-zero values? Good. Non-zero. Yeah. Only 0, false. Yeah. So it can be as good as, let's say I want to see if my sum is 0 or not, right? So what I will say, let's say sum of, let's say 1 minus 1 minus 3 5 minus 11. Okay, is it 0? If it is 0, it will give me false. If it is not 0, it will give me true, right? So this expression will give me answer as this will give me answer -7. That is not 0, right? So this is some way how you use Boolean operators. Okay. So Yes. Boolean is a very you can say very useful. Actually, Boolean expressions are very very frequently used. So get used with that as well. Okay. So we'll talk about it in the DAX expression as well. Okay. So today, why haven't others joined? I guess Suraj also told, right? He is okay with the timing. Just a second. Suraj join or not? Suraj is not here. Shubham is here. Suraj. Yeah, Suraj is not here, right? Yeah. Suraj is not here. Nor is Mahajan? Who Mahajan?
शुभम। Shubham. Okay. शुभम आप किस डोमेन में काम करते हो? मैं फिर से भूल गया। क्या क्या? आप किस डोमेन में काम करते हो? मैं फाइनेंस डोमेन में, पूरा Finance. फाइनेंशियल एनालिसिस। ओके। या Bro, how will like show the financials into reporting, bro? Like you guys totally work something different domain, no? yeah, but see, this is the profile where I mean, at managerial level, if I think about managerial profile, then this should be must. I mean, I should able to learn, miss able to run the queries, pull the data for day-to-day purpose. Because if I'm being a manager, he will be handling so many people at, I mean, in his team. Okay, okay. So on day-to-day work or day-to-day data, I mean, whatever the PNQs and all, monthly, daily stats, monthly stats, and 6 monthly stats, Mhm. everything he has to prepare. Bro, like if you are okay with manager, then just hire me, bro. No, no, actually, right now I'm at senior analyst level, but right now my current goal is to be there at management level. I mean, team lead level first. Oh, team leader. No worries. Like I'm sure you will be like taking interviews now sometimes. At managerial level, yeah, they'll be responsible for that. Okay, and that's why. Like what is happening in our organization? We are doing the same work, bro. We can't learn new things. So that is the problem. That's the only thing. Means because see, it's been 4 years that I'm working in Same. organization, and I am also a trainer. Whatever we are doing, I'm also giving training to new members who is joining our team. So whenever they join, being a new joinees or new hires, so I told on day one itself that uh, see, whatever we are doing, it's a continuous process. So apart from that, learn something new, try to something miss learn something new. So that what happened, I mean, मिस एक काम कर करके ना वो बहुत बोर हो जाता है. Yes, exactly. तो कुछ ना कुछ तुमको है ना, एक ऐसी चीज चाहिए होती है जो तुमको एक क्या बोलते, एक्टिव रखे या लाइव रखे, तो वो होना ही चाहिए. I guess this 2 दिन चलना पड़ेगा नहीं आज पढ़ना सब. they are not replying. So should we continue with the new things? Yes. I wanted to start the next discussion. That is why I was waiting for them. Suraj, Let's wait till 7:30 or else we'll start. yeah. And actually, this one, the in SQL also, Hmm. how I ask you the question on Power BI, this one regarding the automation. But SQL में भी कर सकते हैं ऐसा? Yes, Similar. SQL में भी होता है. It थोड़ा briefly, not I'm telling that this one case in a case scenario, just ऐसे briefly कि कैसे करना है करके. तो उसमें like Power BI का Power BI का account बनाएंगे ना. So in that like when you use Power BI services, there is an option for schedule refresh. So अभी मुझे एक डाउट क्या है इसमें. Say for example मेरे पास एक डेटा है, ठीक है. Example there are 100 rows are there. So वो मैंने एक फोल्डर में सेव कर दिया, ठीक है. okay. I have pulled the data from this with the help of the Power BI. So मैंने वो Power BI के हेल्प से ले लिया, उसका पूरा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन डेटा है सब ने बना लिया, मैंने उसका मैंने रीअरेंज सब कर दिया. अभी मेरे पास डेटा रेडी है. से फॉर एग्जांपल अभी भी मुझे 50 रो ऐड करना है, नया फ्रेश वाला. मैं अभी वो 50 रो पावर बीआई में ऐड करूंगा कि या वो जो मेरा एक्सेल का जो मेरा फोल्डर में जो एक्सेल है उसमें पड़ा है उसमें मैं ऐड करूंगा. It depends like आपका use case कैसा हो. Like if you want you can add it as a separate file in the same folder. If you want you can add the data in the same Excel file. So जैसा आपको चाहिए. ओके, ऐड करते ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आ जाएगा ना? आ जाएगा. ऐड करते ही रिफ्रेश करोगे तो भी आ जाएगा, या फिर आप शेड्यूल रिफ्रेश लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ like whatever time you are scheduled it will get automatically updated. ओके ओके. वो टाइम वगैरह सब आता है, शेड्यूल सब कर सकता है. हाँ सर. ओके, दैट वी कैन मैनेज राइट. वो जो भी होता है Yes. वो ऑटोमेशन वाला हम लोग करेंगे. Like it is in Power BI it is limited up to 8 times a day. So accordingly you can. Okay, 8 times in a day. 8 times in a day. Yeah. Okay. So I guess that is more than sufficient, right? And apart Yeah, from if you want to do it manually, then also you can do it. Okay, we can keep the timings as well, right? Like my 1 hour में चाहिए, Yes, मुझे yes. 2 hours में चाहिए. Okay.
एक्चुअली ना मुझे भी ना इसके रिगार्डिंग डाउट था, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक्सेल शीट हम लोग पावर बीआई में लेकर आते हैं एंड वी और हम उस पे वर्क कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर अगर हम लोग ओरिजिनल शीट में कुछ चेंजेस करते हैं हम्म। तो उसको हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच कर सकते हैं? डिपेंड करता है चेंजेस क्या कर रहे हो आप। सी जनरली कैसा होता है कि मान लो मतलब ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर, जैसे आप डेटा रिफ्रेश करोगे दोस विल बी रिफ्लेक्टेड हियर, बट द पॉइंट इज इफ यू चेंज द डेटा स्ट्रक्चर, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज इफ you change the column name or if you change the column type or हाँ so that will not be handled in a proper way. So for example, if you're doing some calculations, right, suppose you are saying that let's say sum of let's say product of quantity into price, okay. So suppose if you buy like for some reason you change the price to let's say current price, the ओके column name from price to current price. So what Power BI will search for, it will still search for price column which is not available, like which is available but it has been renamed. So Power BI cannot understand that. So that will lead to a unexpected error. Okay. ओके And सो बट लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ डेटा है हमारे पास, लेट्स से 10 एम्प्लॉइज है, 10 एम्प्लॉइज का मेरा पर पर्टिकुलर मंथ का कुछ डेटा है सेम फॉर्मेट में, एंड अब नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ, सेम काइंड ऑफ डेटा है, जस्ट मैंने वो डेटा लिया और ऐड कर दिया उसके नीचे. so that's what I was coming. So if you want to add more rows, you can add that. If you want to add more columns, you can still add those columns. It is just that you should not play with the structure. Okay. बट इसमें एक ध्यान रखना चाहिए कि only the column has to be matched, right? Whatever the columns you have read, Column must, like so generally that is the whole idea of database, right? When designing database you have to like foresee some of the future aspect as well, कि like आगे जाके बार बार उसको change ना करना पड़े, because if you change the structure, like lot of thing might have to change. Correct. So it is the database you should like you will not be using database only for your Power BI. So like other applications will be using it, and they will be making query on a particular table or particular column, right? There will be relationship defined between multiple tables. So if you change the structure, a lot of things has to be changed. Yeah. So that's it. चलो मैं ना ये डमी डेटा लेकर ट्राई करके देखता हूँ बाद में, अगर मैं कैसे वो पावर बीआई पे इफेक्ट कर रहा है. So I had shared this data set with you, right? That active what is that? Active CSV files. बाइक का एक है ना वो, हाँ 2019 वाला पावर बीआई का नहीं, एक्चुअली वो माइक्रोसॉफ्ट का ही डेटा सेट है. सो इट इज अ गुड डेटा सेट, एंड उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट के सारे फीचर्स ट्राई कर सकते हो. इट इज लाइक whenever Microsoft like MS SQL releases a new version, it sends out like it updates the data set accordingly, so that you can test every like you can learn every aspect of the SQL server. Nobody else is what happened? क्या चला गया? I have a feeling that कि सूरज सो गया. नहीं, I think वो बोलता है ना कभी भी ट्रैवलिंग में है. नहीं ट्रैवलिंग है, but he do reply on WhatsApp that I'm stuck or something like that. Today I think he said that he's okay, so I'm assuming he was at home only, and if that is the case, he only told 7 o'clock, right? Yeah, he might have slept. That's what I'm saying. और एक क्वेश्चन था इसमें, बेसिक थिंग्स के लिए. पावर बीआई में अब जैसे डैक्स हम यूज करेंगे, डैक्स फंक्शन, अपार्ट फ्रॉम द डैक्स फंक्शन अभी और कुछ डिफरेंट फंक्शंस हैं? नहीं actually DAX is not a function. Functions बहुत सारे. DAX is just a common name given to it. Okay. So see सूरज और एक बंदा भी नहीं है ना, प्रीत? Yeah, Preeti is also not here. यहाँ पे कोई स्टॉक मार्केट फॉलो करता है? मैं थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ. अभी बजाज मोटर्स के प्राइस गिरे मस्त. हाँ. Even you can go for Tata Motors. हाँ sorry Tata Motors, my bad. Tata Motors.
आज ही मैंने बाय करवाए, मेरे भाई को करवाए, 30,000 के करवाए। ओ भाई भाई, नहीं इतना तो नहीं करता मैं, एक ही दो तो देता हूँ। क्योंकि दिस इज आई मीन वो बेस्ट प्राइस पे आया है। थोड़ा रिस्कियर कॉल था, मीन्स यहाँ से थोड़ा डाउन जा सकता है, बट बहुत अच्छे खासे प्राइस लेवल पे आ गया वो। Bro, you 8%, use 8-9% upstock or what? हाँ, what? You use upstock or what? No, I use Zerodha. Okay, okay. Actually today what happened, I mean I was just totally busy with office meetings and all, but I have missed a bigger opportunity today. Actually I do option trading as well. Acha. Yeah, so I mean whatever the option I kept in my watch list today in morning, that Hmm. option moved a lot. I mean if I would have invest 50,000, it Bro, will become 3 lakhs by end of the day. bro, you're so rich, bro. Investing only 50,000. What? He's the You're guy, so rich. you know, रात क्या बोलते हैं, आठ बड़ा घंटे बंदा से- है, बड़ा बंदा है। हाँ. नहीं मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर मैंने ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की, अगर मैं वो लेकर भी रख देता ना इन मॉर्निंग, दैट 50,000 बिकम 3 लाख बाय एंड ऑफ द डे। वो Oh my बहुत God. बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस की है मैंने आज, लिटरली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑफिस वर्क। अब बाद में ऐसे लग रहा था क्यों ऑफिस वर्क, आज एक छुट्टी डाल देता, सिक लीव डाल देता, बट पता नहीं यार, वो वॉच लिस्ट में भी डाल के रखा मैंने। So, like you guys have this database, right? I have shared. Yes, Yes. Adventure Works, yes. Yeah, so this has lots of table. You can do all kinds of things here. Okay, and yeah, like you can create multiple reports as well on this particular data set. So just to give an overview, like basically ये database ऐसा है कि एक imaginary cycle की company है. So they do create different types of cycle from different categories. So like इसी का एक subset है ये वाला part. So this is just the light version of it. So if you will go through the database, this is just the light version of it. Okay, so इसमें you have much more details. So हाँ, तो like वही है कि एक साइकिल की कंपनी है, एंड उसका सेल्स वगैरह क्या है, कौन कौन सी कंट्री में करेंसीज वगैरह कैसे, लाइक किस तरीके से सेल्स वगैरह होता है, सो लाइक कंप्लीट लेट्स से एक कंपनी का पूरा एक डेटा जो हो सकता है, इट इज समवॉट लाइक दैट। सो अभी इसमें जो एक्सक्यूएल का डेटा है, फॉर एग्जांपल कभी कोई कंपनी में, so same kind of data if someone is managing, he will call as an DBA, right? द So he पर्सन हु will be, मैनेजेस दैट, हाँ करेक्ट है ना, वो पूरा अपना एक्सेल, वो पूरा भी वही टेबल बनाएगा ना, पूरा भी डाल के देगा। टेबल क्रिएट वगैरह करना, टेबल डेटा वगैरह सेट कैसे हुआ, वो सब के बारे में बात करना है सब। या जो बनाएगा बेसिक्स पे, उस पे हम काम करेंगे। वो बना So के रख whatever. देगा, डेटा भी कहीं से आता रहेगा, फिर उसके बाद आप काम हम्म, करोगे। So there is a very Okay. rare possibility कि आपको Power BI से write back करना पड़ेगा database को, so there you will have to use some insert queries and stored procedure maybe. Okay, but then that is very rare scenario. उड़ान में जब मैं प्रीवियस कंपनी में जब जॉब कर रहा था, वहाँ पे क्या करते थे, जैसे वो तो ये था ना, B2B B2C कंपनी था, तो जैसे वो प्रोडक्ट सेल होता है उसमें अभी जैसे वो बायोमेट्रिक से वो ये करते हैं ना, स्कैन वगैरह करते हैं, सो बेस्ड ऑन वो स्कैनिंग के हिसाब से वो जितने भी सेल होता है वो एक पर्टिकुलर स्टोर पे जाके एक एप्लीकेशन में स्टोर हो जाता। वो वहाँ पे उन लोगों ने अपना ही एक एप्लीकेशन बनाया था, वो मैं भूल गया, वो सिमिलर ऐसा ही था। वो डेटा रिफ्रेश होता रहता है, लाइक एवरी 1 आवर के लिए वो रिफ्रेश होएगा डेटा, So हाँ वो ऑटोमेटिक डेटा आ जाता था। उसके बाद हम लोग जो भी क्वेरी करते हैं, जो नॉर्मल सेल्स का डेटा निकाल रहा था, जो तो मैं तो सेल्स टीम में था, सेल्सिंग टीम के लिए सपोर्ट कर रहा था, तो वो एक क्वेरी था, वो हम यूज करते थे, और जो भी डेटा था हम वो पुल कर लेते थे, कितना सेल हुआ कितना। मतलब जनरली वैसे ही होता है, लाइक एप्लीकेशन में कोई डेटा सेव नहीं होता, सारा डेटा डेटाबेस में सेव होता है, एप्लीकेशन पे दिखता है डेटा। So like this is also a kind of application only, right? This is just a client, so like these things are there somewhere in the memory. Do you remember आपने एक बार मुझे ETL का एक्सप्लेन किया था? Yes. Now वो मैं कैच कर रहा हूँ कि एक्चुअली they are also doing like that only. वो जो भी सिस्टम जो ऑटोमेटिकली डेटा ले रहा था, उसको वो ट्रांसफर करके एक एप्लीकेशन में फॉरवर्ड करते हैं, लाइक ईच आवर के लिए वो रिफ्रेश कर रहे थे, और जो भी डेटा नया वाला आता
उससे ना वो फॉरवर्ड कर देते वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। Yeah, so like majorly सारे सॉफ्टवेयर जितने भी सॉफ्टवेयर आप देखते हो ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी देखते हो generally there are three parts to it. First one will be the user interface, that is the front end, then there is something called as back end, and the third part is database. So the front end is like what you see, back end is like how they are communicating internally, and third part is where the data is stored. Okay. Okay, so let's not wait further. यार सूरज लोगों ने मैसेज देखा, सूरज ने भी देखा, प्रीत ने मैसेज देखा है। अच्छा क्या हो गया? Okay, let's just get through the introduction part. Okay, and then once the introduction is done, we can do some revision if everybody is not joining. Okay. Okay, so suppose if we pull a data, so basically in DAX, what is DAX we'll talk about. So first of all, let's get some data, and we'll do it from the Excel, actually CSV file. Okay, so let's say we get some product data, actually sales data. Okay, and let's get here, let's get it open. Sales, that should be fine. Okay, so since that is ये जो विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है ना साइड में, उसमें R and Py, ये जो R and Python है वो है ये। हाँ R और Python का है, ये हम नहीं पढ़ेंगे इस लेवल, मतलब थोड़ा एडवांस हो जाएगा। Okay, so let's say transform data, like since data is proper, we'll just simply load it for now. We'll skip the transformation part. Okay, so let's get are also similar, right? Like Python, how we do coding and all? not really. Like R has a very different syntax. Okay. Like if you are like, once you know the programming, you can switch to other language, but then R is like R was initially made for mathematical calculations initially. More kind of like Python is more kind of a general use case, but then R was specifically for mathematical calculations and machine learning kind of thing. So machine learning at the back end is again lots of mathematical calculations. Okay, so yeah, let's get into it. So let's say we are here. Okay, so once you are here, what you can do is you can so again, so see, so basically what are DAX are like way, or let's say some expressions that are written to make some calculations. Okay, I'll repeat. DAX are like simply in simple words, these are expressions that are used for calculations. Okay, so if we just want to see what is DAX, so if you come here, get DAX. Okay, it is again nothing but DAX in Power BI. So it is nothing, but it is just that it is like some technical things. Then it is just used to calculate. Okay, expressions to calculate. Okay, so if that is straightforward. Okay, so like how do we calculate? So basically we can calculate in two different ways. Either we can calculate row by row. Okay, either we can calculate row by row, or else we can calculate column by column. Actually not column by column. Let's say maybe some, okay, let's say group, in some group, or let's say column wise. For now, let's consider column wise only. Okay, so why I'm saying not exactly column wise, I'll tell you later, but then for now, let's say we can have two types of calculations, either by row or by column. Okay, is that clear? Yes. Okay, now if you want to do
if you want to do anything at row level, okay, what you can do is you can go here and then add a new column. Okay, if you want to do something at row level, you can add a new column. Clear? Okay. And similarly, if you want to do something at the column level, you will go with the new measure. Okay, this is just a general idea when to use which one. Can you repeat again? Okay, so if you want to do something at row level, let's say I want to let's say get the sum of territory key, order item, and order quantity. Okay. So that is at row level, right? I'm getting a sum of this plus this plus this. So that is at row level. Yeah. So for this, I'll go with I will right click and then create a new column. Okay. Okay. Suppose if I have to do something at the okay, let me show you how to do it. Okay, so let's say I want to create a new column because I want to go row by row. So I will simply say do a equal to, so let's say okay, so let's say we will call it row sum. Okay, so row sum is equal to, let's say, territory territory, okay, plus we'll say order. Hi all. I भाई थर्सडे को क्लास थी, पता नहीं मेरे को. okay, no worries, अभी just start किया हमने. Order line item, and then we'll have order quantity. Okay. Yeah. So if I hit enter, you will see I'll get, let's say, row sum, that is 9 plus 1 plus 1. Yeah. And if I go at the bottom, we might see something different as well. Let's say 1 plus 1 plus 1, 3, right? Yeah. So this is what we call as new column. This is what we do by going for new column. Okay. So yeah, new column. Okay, so Preet, like if you have Anji. joined just now, so we have just started like earlier we were just discussing previous things. Okay, so we have just started with the DAX expression. So what is DAX expression? It is just a like expression to make some calculations inside the Power BI. Okay. Okay, so the calculations can be either like you might want to go at a row level, or else you might want to do it at the column level. So if Okay. you want to do anything at, let's say, row by row, you will go with the add column, like new column. Or if you want to do something like, let's say sum of all the order line items, then you will go with the measure. Okay. Okay. So right now what we did is we created a new column, and the expression that we use is simply like sum of territory key, let's say key plus line item plus quantity. But what were you typing in that box? We can type here or we can use the column. एक No, second भाई कॉल आ गई मेरी, एक Oh. second. Okay. So everybody else got it, right? Straightforward. Yeah. Okay. बेसिकली वो एक टेबल में आके जो भी कॉलम्स होता है वो बेसिकली सेलेक्ट करेंगे कौन कौन सा स्पेसिफाइड करेंगे. So it's basically when you start writing it here, right? So when you start writing it here, so let's say the moment you write, let's say half of something like this, so it will start giving you sessions. Yeah. Okay. So this is the column name from this particular table. So this particular table, we have column name. Okay. Territory. Okay. So और जो शीट ओपन है उसका ही ऑप्शन दिखाएगा ना हमें यहाँ पे. नहीं यहाँ पे सबके ऑप्शन दिखाता है, like all the related tables that you have. Okay. Okay. It is just that you need to define the relationship between the tables here. Okay.
in this particular window. Okay. तो इसका मतलब हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी कर सकते हैं विद लेट्स से फॉर एग्जांपल एक शीट में मेरा प्राइस है एंड एक शीट में क्वांटिटी है, तो मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे. Like if the validation is in a like if the relationship is valid. Okay. Okay, for example, अगर आपके वहाँ पे 10 कॉलम है, यहाँ पे 20 कॉलम है, तो it will not be affected, right? It will not be. So in that case, what you can do is you can merge the query and then go for it. Okay. Yeah. Okay. So ठीक है. So this is Preet, are you back? Still not back. Or did he left? He's there. Okay. So yeah, so what I was saying is once you start typing, you'll get the sessions. Okay, so if all the like available functions, let's say concat, like all those functions will be available. Apart from that, if you're typing, see, you'll say all the columns that somewhat match with TE, right? So let's say you have TE here, you have TE here, you have TE here, you have TE in these functions. Okay, so that is why these are. So let's say just type some few letters and then press the tab button to get the to auto complete it. Okay. Okay. Order line item plus, and let's say only these two. This time we'll go for only these two. Or let's say if you okay, I'll tell you a few other things later. So once this is done, okay, so you'll have this thing. Yeah. So similarly, if you want to create measures, let's say I want to get the sum of all the so let's say I just create a table here in the visualization so that you can see that you can see that this thing is available here. So let's say I will go with the simple table. Okay, a simple table, and here I'll get some, let's say, order quantity, the territory key, and order quantity. Okay. Yep. And also, okay, we don't want this sum actually. This is a simple table. Where is a simple table? This is table, right? This one. This is a simple table, right? But it is showing the sum of values. Count I think. Actually, don't summarize. And also this one also don't summarize. Don't summarize. Okay, something like this. Okay, so we have territory key and the order quantity 1 1 1 each 4. Don't know how this. ये टॉप वाले क्यों बता रहे हैं यहाँ पे? टॉप वाले में था ऑर्डर की हमारे पास 10 ही है एक्चुअली, तो उसने उसको करके फिर इसको ग्रुप कर. So maybe not this one will not be the correct one. What we can do is we can delete this one and we can get this one, and let's say we want to have the, okay, let it be on a column confusion. Okay, Preet, are you back or should I continue? I think he'll take some time, so let me continue. So see, the point here is if you add a column, it will be visible in the table. So like it will be added as a new column in your table. Yeah. Okay. Now if I go with the new measure, okay, so let's say I want to get the sum of, let's say, all the order item. Okay, let's say I want to see, okay, let's say we get the sum of all the order quantity. Like I want to know what is the total amount of quantity, or like what is the total count of products that was sold. Okay. So let's say if I right click on this and if I say create a new measure, if I create a new measure, you'll see that even if let's say I want to go with the sum of let's say order quantity, right? So I'll just click on order quantity
and close the bracket, and when I hit enter, you see a measure is created, but it is not visible here. Okay, a measure is created. Okay, a measure is created. Let's say we'll rename it to sum of order quantity. बोल बे, एक सेकेंड guys. Okay, so if sorry, back to lecture. So if you see the measure has been created. If I just rename it, if I hit enter, so it will be renamed as sum of order quantities, but then you will see this is not visible here. Okay, guys, can you guys hear me? Yes. Okay, so my point is like whenever you create a column, it will be added as a new column or as a separate column in your database. Oh, sorry, in your data table. And if you go for the measure, it will be just created as some calculation, but it will not be visible on your table. Okay. So what does it infers? It means that whenever you are creating a column, it will occupy some more space. Okay, it will take some more space on your table, so like it will increase the file size. Yes. Ultimately, but if you create a measure, it will not increase the file size. Okay, it will be created at the runtime. Okay. Okay. Now what do I mean by runtime? There are two things. Okay, so let's say there's two things. First is load time and the second one is runtime. What are two things? First one is load time and the second thing is Runtime. Okay, load time kya hota hai? Okay, so all the calculations that are done automatically when you open the report, that is called as load time. Okay. Okay, and then suppose, see what I'm trying to say is, देखो जब मैंने ये टेबल क्रिएट किया, जब ये टेबल लोड होगा तो क्या होगा, ये कॉलम भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, मतलब जब भी आप नेक्स्ट टाइम रिपोर्ट ओपन भी करोगे तो फिर से क्या, मान लो बैकएंड का डेटा चेंज हुआ, तो जैसे आप नए डेटा के साथ रिपोर्ट ओपन करोगे तो नया डेटा आएगा और ये कॉलम भी क्रिएट हो जाएगा जब आप रिपोर्ट ओपन करोगे तो. ओके, इतना समझ में? Yeah, can you again repeat की वो statement? ओके, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है लोड टाइम होता है, एक होता है रन टाइम. Yes. लोड टाइम इज कि जब भी आप कोई जैसे आप रिपोर्ट ओपन करोगे तो जितनी भी चीजें आपके इंटरेक्शन करने से पहले रेडी हो जाएंगी, दैट इज लोड टाइम. ओके, नाउ आई विल बी मोर टेक्निकल. इंटरेक्शन करने से पहले नहीं, कोई भी लाइक मैनुअल या फिर मैनुअल भी नहीं बोलेंगे, कोई भी प्री प्रोसेस समझ लो, मतलब कि आपके कुछ करने से पहले जो चीज लाइक पावर बीआई के लोड होते ही जितनी भी चीजें होंगी उनको बोलते हैं लोड टाइम.
Okay. मतलब जितने भी एक्शन परफॉर्म होंगे उनको बोलते लोड टाइम। फॉर एग्जांपल जैसे आप रिपोर्ट, जैसे आप पावर बीआई खोलते हो, देखो आपको आपके सारे टैब्स अवेलेबल हो जाते हैं, है ना? Yes. फिर लेट्स से यहाँ पे सारे वाला जितना भी यूआई वाला पार्ट है वो लोड हो जाता है पूरा आपका। फिर आपका डेटा लोड हो जाता है, टेबल लोड हो जाता है, राइट? Yeah. तो ये सब जब आप मतलब मैंने इसको सेव किया, मतलब ये लाइक ये रिपोर्ट को जब मैं सेव करूंगा तो क्या सेव होगा, एक फाइल सेव होगी जिसके अंदर डेटा, अगर डिपेंड करता है कि आप डेटा सेव करो तो डेटा के साथ एक फाइल सेव हो जाएगी। Yes. ओके, और वैसे ही जब आप ओपन करोगे तो अगर डेटा मान लो रिफ्रेश होगा, मान लो नया डेटा आया, तो नया जैसे आपने ये वाली पर्टिकुलर रिपोर्ट को ओपन किया, नया डेटा आके लोड हो जाएगा इसमें, ठीक है? Okay. और जैसे ही वो टेबल लोड होगा, वो टेबल लोड होते ही ये कॉलम भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? Okay. जैसे ही ये टेबल लोड होगा, टेबल के लोड होने टाइम ही, मतलब जैसे ही टेबल लोड होगा, टेबल लोड होने के साथ साथ ये जो न्यू कॉलम आपने क्रिएट किया है, कॉलम भी क्रिएट हो जाएगा। Bro, how do we know that it already created? बोल के, like, do we get any kind of how can we know that it's already हाँ, created? मैं लाइक उस पे आता हूँ, ठीक है? मतलब एकदम ऐसा सेपरेटली दिखता नहीं है, इट इज जस्ट एन लाइक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप समझने के लिए मैं बताता हूँ कैसे समझ सकते हो उसको, ठीक है? Okay. तो मतलब क्या हुआ, जैसे ये टेबल में डेटा चेंज होगा, ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मतलब जब ये टेबल क्रिएट होगा तो इस टेबल के क्रिएट होने टाइम ही ये वाला कॉलम भी क्रिएट हो जाएगा। इतना क्लियर है? Yeah. ओके, आई विल रिपीट। जब भी ये टेबल क्रिएट हो रहा होगा, भले ही नया डेटा के साथ हो, पुराने डेटा के साथ हो, कुछ भी हो, कि जब ये टेबल क्रिएट हो रहा होगा तो उसी टाइम पे ये कॉलम भी, जो नया कॉलम हमने ऐड किया है वो भी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मेजर्स के साथ ऐसा नहीं होता। मेजर्स के साथ क्या होता है, वो डिपेंड, आपने मेजर्स क्या होता है, एक एक्सप्रेशन रहता है जिसका फाइनल वैल्यू रन टाइम पे निकलेगा। अब रन टाइम क्या होता है, ठीक है? रन टाइम मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई क्रिएट अ विजुअलाइजेशन, okay, I'll delete this one, I'll take this one, okay, I'll delete this one, I'll delete this one and this one as well. I'll take something run time के बारे में बात करें। So let's say हमारे पास let's say हमने ले लिया let's say product, okay. Now let's say we go with the row sum. Not we go with the row sum. Okay. Now let's go with the sum of this one. Okay. See रो सम के जो वैल्यूज हैं, ठीक है? रो सम का जो वैल्यू है दैट इज हियर, रो सम के जो वैल्यू है दैट इज दिस वैल्यू, ये कब क्रिएट हुई, जब हमने टेबल क्रिएट किया तब। ओके, Yes. ओके। लेकिन हमारा जो ये वाला है सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है? सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी के जो वैल्यू है ये कब क्रिएट हो रहा है, जब मैं इसको विजुअलाइजेशन में यूज कर रहा हूँ, Okay. ठीक है? ये कब, इसकी वैल्यू कब कैलकुलेट होंगी, जब मैं इसको किसी विजुअलाइजेशन में यूज करूंगा, ठीक है? सो अब क्या हो रहा है, अब ये पहले से क्रिएट नहीं हो रही, इसको मैं किस विजुअलाइजेशन में क्रिएट कर रहा हूँ उस पर डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यूज कैसे एग्रीगेट होंगी या फिर कैसे कैलकुलेट होंगी। आई रिपीट, देखो क्या, जो हमने नया कॉलम क्रिएट किया उसकी वैल्यू पहले से डिफाइन, मतलब जब जैसे ही टेबल लोड होगा तुरंत इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएंगी, राइट? जो नया कॉलम क्रिएट किया हमने। लेकिन जो मैं मेजर क्रिएट करूंगा, मेजर की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा कि मैं उसको विजुअलाइजेशन में कैसे यूज कर रहा हूँ। सो उसकी जो वैल्यूज क्रिएट होंगी दैट विल बी क्रिएटेड इन दी रन टाइम, ठीक है? अभी मैं ये आपको ये रन टाइम और लोड टाइम के बारे में क्यों बता रहा हूँ, इसका आप लोगों को बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट अगर आप इसको समझते हो आप कुछ चीजें परफॉर्मेंस के लिए एनहांस कर सकते हो।
ठीक हाँ है। जी आशीष भाई, ज्वाइन कर लिया। क्या मिस करा मैंने? ओके गुड, बहुत कुछ मिस कर दिया। ओ भाई ऐसे मत बोलो, मना करो, वैसे ही पहली 2 क्लासें मिस हो गई मेरी। चिल चिल, ठीक है। अच्छा मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका एक्सप्लेन करने के बाद फिर से ठीक करता हूँ, ठीक है ठीक है। ठीक। ठीक है, सो मैं ये बोल रहा था कि ये ऑन लोड और रन टाइम, मतलब लोड टाइम और रन टाइम में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको समझना 100% जरूरी नहीं है। जस्ट दैट ये समझोगे तो आपके लिए परफॉर्मेंस आपको एनहांस करने में अच्छा हो जाएगा। ओके, सो ये एक चीज हो गया। बट डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस अगेन इन सिंपल टर्म्स, जो कॉलम होता है दैट विल बी क्रिएटेड ऑन द लोड टाइम। मतलब क्या, जब आपका टेबल लोड हो रहा होगा तभी ये कॉलम भी लोड मतलब क्रिएट हो जाएगा। और जो आपका मेजर रहेगा वो आप किस चार्ट में यूज करोगे उस पर डिपेंड करेगा। ओके ओके ओके, देखो अभी किसको कब यूज करना है। पहला एक तरीका क्या था डिस्टिंग्विश करने का, कि अगर आपको कोई चीज रो लेवल पे करनी है तो यू विल गो विद द न्यू कॉलम। न्यू कॉलम। कोई चीज अगर आपको कॉलम लेवल पे करनी है तो यू विल गो measure न्यू। measures ओके, सो अब यूज केस कैसा होगा देखो। अभी मान लो मुझे कोई चीज, जैसे लेट्स से अगेन हमने बहुत सारे वो किया था ना, याद है ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने वो किया था, लाइक लेफ्ट के 10 लेटर निकालना, स्प्लिट करना एंड ऑल दोस थिंग्स, या राइट। एक वो चीज हो गया। तो मान लो अगर हमने वहां पे जितने भी स्टैटिक चीजें हैं उनमें से अगर कुछ हटके करना है तो हम यहाँ पे आगे डेक्स एक्सप्रेशन से कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा कि लाइक जैसे मैं बोलता हूँ कि इन तीनों का सम करके डिवाइड बाय 3 करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको हम इतना सिंपल ही रखते हैं, इसको हम बोलते हैं इसका जो आंसर आएगा, इन दोनों का जो आंसर आएगा। ओके, मैथ्स इतना क्लियर है सबका कि ब्रैकेट्स वगैरह समझते हो सब लोग? अरे हाँ हाँ Okay, so let's say 2 or let's say 2 into let's say 2 ka, like let's say we want to multiply by 8 and divide by का सिंबल शायद ये नहीं, divide by 3 and then add 2. So like देखो ये वाला एक्सप्रेशन मैं बाहर नहीं सकता, राइट। जब मैं पहले कर रहा था तो मुझे इसके लिए कैसे करना पड़ता है, मुझे या तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर दूसरे कॉलम में डिवाइड करना पड़ता है, फिर तीसरे कॉलम में ऐड करना पड़ता है। तो मैं अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास पूरा एक्सप्रेशन मैं खुद से कंट्रोल कर सकता हूँ तो आई कैन मेक सम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एज वेल, राइट। सो जब आपको कुछ ऐसा करना होगा तब आप न्यू कॉलम सेलेक्ट करोगे। न्यू कॉलम। ओके हाँ ओके, जब आपको कुछ ऐसा निकालना होगा तब आप न्यू कॉलम सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास लेट्स से इसका मान लो ये प्रोडक्ट की को हम प्राइस मान के चलते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज आवर प्राइस। Okay, let's say this is our price, so we want to see what is discounted, let's say 10% discounted price, right? So 10% discounted price कितना हो जाएगा? 0.9 into this value. Okay. My bad. 0.9 into product key, right? Discount. Got it? प्रीत क्लियर ना इतना? हेलो, हाँ जी भाई। ये क्लियर है ना? नहीं भाई, कुछ नहीं पता चल रहा, क्या बोल गया आप? बोल रहा हूँ अगर मान लो आपको ये अभी हो कहाँ पे, मेरे को ये नहीं पता चल रहा है। ये तो ना, नहीं, हमने क्या खोला हुआ है? ये पावर क्वेरी है क्या ये? नहीं ये हम टेबल वाले अच्छा, लोड करने के बाद जो आता है उसके अंदर। लोड करने के बाद जो आता है वहां पे है, ठीक है और वहां पे हम एक नया कॉलम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं वही बोल ठीक रहा है हूँ कि अगर आपको नया कॉलम क्रिएट करना है तो खाली ये राइट क्लिक करके आप न्यू कॉलम पे क्रिएट करोगे, सॉरी न्यू ओके, कॉलम न्यू कॉलम, ठीक है पे जाओगे तो यहाँ पे एक ऐसा विंडो, लाइक यहाँ पे लिखने के लिए एक जगह आएगा, फॉर्मूला ठीक है। बार होगा। ओके फॉर्मूला बार में अगर आपको लिखना है, जैसे मान लो इसका 10% डिस्काउंटेड प्राइस निकालना, तो क्या करोगे 0.9 इंटू टोटल प्राइस, ठीक है है ना। ठीक है सो जब आपको ऐसे कुछ कैलकुलेशंस करेंगे तो देन ओनली यू विल गो फॉर द न्यू कॉलम्स। न्यू कॉलम्स, ओके, ठीक है सो न्यू कॉलम्स इन टर्म्स ऑफ डैक्स एक्सप्रेशन बहुत कम यूज करते हैं, बट देन यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूज नहीं करते, बट जनरली कम यूज करते हैं। गॉट इट? सो और अगर अब मैं कोई चीज इसके कॉलम लेवल पे करनी है
लाइक कॉलम लेवल पे मुझे सपोज डिस्काउंटेड प्राइस का अब मेरे को टोटल लेट्स से मुझे अब इसका टोटल लेट्स से टोटल निकालना है कि अब मेरा टोटल प्राइस कितना होता है आफ्टर डिस्काउंट. So now what I'll do is I'll create a measure. New measure. Okay, I'll create a new measure in this table. I'll go with the measure and say what is the sum Discount. say Sum of total discount. So that will be equal to sum of, let's say what is that, sum of discount, sum of discount, and then it will be done, right? So sum of discount is total discount. So if I just go here, if I go here and if I create if I भाई वो create कॉलम ऐड नहीं हुआ जो आपने अभी करा है टोटल डिस्काउंट वाला वहाँ पे? हमने measure. हमने नया मेजर क्रिएट किया है, तो मेजर ऐड नहीं होता है. मेजर क्या होता है? मेजर सिर्फ कैलकुलेशंस होती हैं. ओके ठीक है, वो एज अ कॉलम ऐड नहीं होती है. ठीक है, ओके. तो हमें कहाँ पे दिखेगी वो? हाँ वही दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फील्ड में दिखेगी. ओके ओके, फील्ड में दिखेगी जो हमें ट्रांजैक्शंस करी मतलब. यस यस. सो लेट्स से अगर मैं मैट्रिक्स ओपन करता हूँ और लेट्स से इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ एंड अगर मैं इसमें अब मैं डालूं क्या, टोटल डिस्काउंट. सो यू विल सी लाइक टोटल डिस्काउंट में टोटल एक सम आ गया. टोटल कॉलम का जो हमने डिस्काउंट दिया. हाँ, टोटल कॉलम का सम आ गया. ठीक है, अभी देखो I'll repeat the again. देखो मैं सेम चीज बताता हूँ. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कॉलम क्या हुआ, कॉलम की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली. ठीक है, कॉलम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, राइट गाइस? 315 है 315 रहेगी, यहाँ पे 283 है 283 है. लेकिन मेजर की वैल्यू चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि मैं उसको सेग्रीगेट कैसे कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको प्रोडक्ट की के बेसिस पे कर रहा हूँ, सो इट विल अगेन सेपरेट, राइट, डिफरेंट वैल्यूज फॉर सेम एक्सप्रेशन, राइट? Yeah. Suppose if I instead of product key, if I go by, let's say go by order number, right? So again I'll have the different values. Okay. टोटल सेम रहेगा, जस्ट नंबर चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द जो भी इनपुट दे रहे हैं हम. हाँ मतलब ये समझो कि ये जो मेरा टोटल, ये जो मेरा मेजर बन रहा है, इसकी जो फाइनल वैल्यू है दैट इज नॉट अ स्टैटिक वैल्यू. ओके. राइट, यहाँ पे क्या था, ये वैल्यू स्टैटिक है विच इज डिपेंडेंट. लाइक देखो, स्टैटिक का मतलब ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगी, अगर यहाँ की वैल्यू चेंज होगी तो चेंज होगा, बट देन अंटिल माय डेटा चेंजेस दिस इज माय स्टैटिक वैल्यू. यस. राइट, बट माय मेजर इज नॉट अ स्टैटिक वैल्यू. इट डिपेंड्स अपॉन कि मेरा उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं. गॉट इट? ओके. ओके, सो देयर आर 3 डिफरेंसेस. पहला डिफरेंस क्या है, कॉलम इज विजिबल, राइट प्रीत? बट थर्ड वाले जो आपने इसमें विजुअल में करा है, विजुअलाइजेशन वाले में, इसमें आपने कहा जो आपकी कमांड लगी हुई है मींस की टोटल डिस्काउंट वाली, अगर हम जो प्रोडक्ट की के साथ में 10% निकाला था, प्रोडक्ट की जगह हमने ऑर्डर नंबर ले लिया, उसका 10% कैसा, मतलब हमारी टोटल कॉलम डिस्काउंट वो सेम रहेगा, कॉलम उसमें वैल्यूज चेंज हो जाएगी एज पर वैल्यू ऑफ डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर नंबर और डिपेंड, कैसे मतलब सेपरेट किससे हमने करा है. हाँ, जैसे हम ठीक है करा. ना? ठीक है, तो देखो 3 डिफरेंस हो गए. क्या डिफरेंस हो गया? पहला डिफरेंस क्या होगा, कॉलम इज विजिबल एंड मेजर इज नॉट विजिबल. मेजर इज नॉट विजिबल. हाँ, ठीक है, तो बेसिकली कॉलम क्या करता है, स्पेस लेता है एंड मेजर स्पेस. मेजर नहीं लेता. ओके, सेकंड थिंग इज कॉलम क्या है, कॉलम आपका लोड टाइम पे बनता है और मेजर आपका रन टाइम पे बनता है. ये क्या होता है रन टाइम में, लोड टाइम? कॉलम क्या हुआ, जब भी जैसे हमारा टेबल बनेगा ना, ये कॉलम भी हमारा टेबल के डेटा के हिसाब से बन जाएगा. ओके. ठीक है, लेकिन हमारा जो मेजर है, जो हमारा ये है, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो हमारा चार्ट बनेगा तब आएगा. ओके. तो जैसा जैसा हमारा चार्ट चेंज होता रहेगा, मतलब मान लो मैं चार्ट में कुछ चेंज कर दूंगा तो ये भी चेंज हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे कुछ और कुछ और डाल दूं, जैसे ऑर्डर क्वांटिटी और कुछ और डाल दूं, ठीक है, कुछ और डिफरेंट ऐसे नहीं, ऐसा कहते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे चीज चेंज करता रहूंगा, तो देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे चीजें बदलती जा रही हैं. ठीक है, उसके हिसाब से. ठीक है, वैसे टेरिटरी की लेता हूँ तो और चीजें बदलती जा रही हैं. मतलब जैसे जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, ये देखो ये सब बदलते जा रहा है फटाफट.
बट हमारा जो मेजर है वही चल रहेगा जैसे हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है। हाँ मतलब जो भी मतलब वैल्यू लेंगे उस पर डिस्काउंट अपने ऑटोमेटिकली मेजर मतलब लेता वो जो रहेगा। कैलकुलेट हो रहा है वो मेरे एक्शन पे डिपेंड कर रहा है बार बार। एक्शन मेरा एक्शन चेंज हो रहा है बार बार, वो फिर चेंज हो रहा है। लेकिन जो मेरा कॉलम है, कॉलम का डेटा अभी तक भले ही मैं वहां पे कुछ भी चेंज करूँ, यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो चीज एक बार लोड होने के बाद बन जाती है उसको बोलते हैं लोड टाइम पे बनना। ठीक है, और जो चीज आपके काम करने के साथ चेंज होती रहेगी उसको बोलते हैं रन टाइम पे चेंज करना। ठीक है। ठीक है, जब मैं कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ तो उसके रिस्पॉन्स में फटाफट चीजें चेंज हो रही है। Yep. ओके, दैट इज रन टाइम। ठीक है, जो हम विजुअल में करेंगे वो रन टाइम में गिना जाएगा, जो हम नीचे करेंगे उस पे लोड टाइम में आएगा वो। अभी के लिए वैसे समझ लोगे तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो सेकंड वाले कॉलम में चेंज नहीं हो रहा ना, क्योंकि वो लोड टाइम पे आपने कर दिया कि हाँ, रन टाइम जैसे हम किसी को रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तो जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट हम चेंज करी जा रहे हैं जो फॉर चीजें एग्जाम्पल फिल्टर आपको पता, में। कोई फिल्टर पे क्लिक कर रहे हो, कहीं और क्लिक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जैसे मान लो अभी मान लो मैं एक फिल्टर भी लगा दूं यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मान लो मैं एक स्लाइसर भी ले लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से एक स्लाइसर लेते हैं। ठीक है, और एक स्लाइसर पे लेट्स से मैं कुछ डेटा फिल्टर करता हूँ। ठीक है, मान लो मैं स्लाइसर पे प्रोडक्ट की वगैरह नहीं लेता हूँ, लेट्स से मैं लेता हूँ टेरिटरी की। ओके, सो मैं एक्चुअली टेरिटरी की भी लेता हूँ, स्टॉक डेटा, स्लाइसर क्या है इसके अंदर? वो सब हम देखते हैं विजुअली, खाली समझ एक तरह का फिल्टर है। ठीक है। ठीक है, तो सपोज मान लो मैं यहाँ पे एक्चुअली मंथ कर लेते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पे क्वार्टर कर लेते हैं एक्चुअली। ठीक है, क्वार्टर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वार्टर 2 का लेता हूँ, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज हो गए, राइट राइट, यहाँ पे कैलकुलेशन ये इससे कनेक्ट है हाँ कनेक्टेड है। कैसे? वो सब देखेंगे बाद में, अभी बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो मैंने ये सब मैंने यहाँ पे डेटा मतलब यहाँ पे फिल्टर चेंज किया मैंने। ठीक है, तो ये देखो वैल्यू देखो दोबारा कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखो कोई चीज चेंज नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस? चलो, तो हमने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, बट आई होप एवरीबॉडी लाइक वो टाइम यूज हुआ है पूरा एंड सबको एकदम क्लियर है रन टाइम एंड लोड टाइम क्या होता है। यस। Okay, and also what is difference between columns and measures. Yeah. Okay, so if this, let me see if I'm missing something. Okay. Columns we have talked about, measures we have talked about, and okay. चलो, सो दो डिफरेंस हमने देखा, और तीसरा डिफरेंस क्या है जो मैंने बोला था, क्या होता है कॉलम रो लेवल पे लगता है, और सॉरी हाँ न्यू कॉलम क्रिएट करते हैं तो वो किस पे क्रिएट होता है, रो लेवल पे, और Yeah. न्यू मेजर किस पे क्रिएट होता है, कॉलम लेवल पे, राइट। यस। अभी इसका टेक्निकल टर्म क्या है कि जो न्यू कॉलम्स बनते हैं, जो न्यू कॉलम्स बनते हैं दैट फॉलोज रो कॉन्टेक्स्ट, जो न्यू कॉलम्स बनते हैं दैट फॉलोज रो कॉन्टेक्स्ट, न्यू कॉलम जो बनते हैं दैट फॉलोज रो कॉन्टेक्स्ट। रो कॉन्टेक्स्ट मतलब वो रो बाय रो परफॉर्म होते हैं, जो भी कैलकुलेशन Okay. करोगे दैट विल बी रो बाय रो। सो Okay. कोई समेशन कर रहे हो, कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, कोई डिवीजन कर रहे हो, तो दैट विल बी रो बाय रो ओनली। ओके, इज दिस क्लियर? Yes. Okay, and let's say if we are creating a measure that is based upon filter context, I'll repeat, if we create a measure that is based upon the filter context, what do I mean by filter context? चलो ठीक है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? इफ यू गाइस रिमेम्बर, मैंने फिल्टर कॉन्टेक्स्ट एक और बार बताया था पहले भी, but I guess the response that I got, it is not very familiar to you guys. Okay, so filter context means कि मान लो मैं ये टोटल डिस्काउंट लिया था, ठीक है, अब टोटल डिस्काउंट पे यहाँ पे कौन सा फिल्टर होगा, इसके सामने वाली वैल्यू मतलब टेरिटरी 1 का ही फिल्टर हो गया डेटा यहाँ पे।
यहाँ पे टेरिटरी 4 का ही फिल्टर होके आएगा, यहाँ पे टेरिटरी 5 का ही फिल्टर होके आएगा, यहाँ पे टेरिटरी 6 का ही फिल्टर होके आएगा। ओके ओके, रिमेम्बर जब हमने रिलेशनशिप की बात की थी, जब हमने एरो के डायरेक्शन सेट किए थे तब बात किया था हमने, हाँ फिल्टर कांटेक्ट यस राइट? तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लाइक उतना डीप में नहीं जाऊंगा अभी, बट अभी समझने के लिए याद रखो कि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ। अगर मैं यहाँ पे कोई मेजर ले रहा हूँ पर्टिकुलर कॉलम पे या फिर कहीं किसी पर्टिकुलर चार्ट में, तो डिपेंड करेगा कि उसके आसपास उससे रिलेटेड वैल्यू कौन सी है, तो उसके हिसाब से फिल्टर हो गया डेटा। ओके ओके, देखो जैसे कि यहाँ पे कोई फिल्टर होके नहीं आ रहा है, यहाँ पे डेटा सिर्फ रो बाय रो आ रहा है, मतलब इस रो का इन्फॉर्मेशन इस रो में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे किसके हिसाब से फिल्टर होगा डेटा? अगर मैं सम निकाल रहा हूँ तो सिर्फ उन्हीं का सम होगा जहाँ पे टेरिटरी आईडी 1 है, 1 है, यहाँ पे टेरिटरी आईडी 4 है, यहाँ यहाँ पे टेरिटरी आईडी 5 है। तो अगर मैं टेरिटरी की हटा के कल को मैं यहाँ पे रखता हूँ कि लेट्स से आई वांट टू डू इट बाय मंथ, ओके। सो अब फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करेगा? यहाँ पे सिर्फ उन्हीं रोज में से डेटा लेके आएगा, यहाँ पे अप्रैल, हाँ डिस्काउंट में से उन्हीं रोज में से लेके आएगा जहाँ पे मंथ इज अप्रैल, जहाँ पे मंथ इज मई, ऐसा। ओके ओके, तो अगर मैं इसको हटा भी दूं तो मान लो मैं सारे फिल्टर्स हटा देता हूँ, सो नाउ यू विल सी लाइक अगेन मंथ बाय मंथ ऑटोमेटिकली ओके आएगा। गॉट इट गाइस? फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? क्लियर है ना? यस तो भाई थोड़ा बहुत, मेरे को ज्यादा नहीं। ठीक है, बट मतलब यही समझ लो कि ये डिपेंड करता है कि इसके सामने वाली वैल्यू क्या है। तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम में से सिर्फ वही वाले रोज का डेटा आएगा, डिस्काउंट कॉलम में से सिर्फ वही वाले रोज का डेटा आएगा जहां जिनका मंथ जनवरी है। ठीक है, वो अपने आप टोटल करके जैन मंथ के टोटल डिस्काउंट हो गया, फैब के हाँ, टोटल, वो ऐसे कह अपने रहे हो? आप टोटल नहीं, अपने आप जनवरी का डेटा फिल्टर आउट करके टोटल करेगा। ओके ठीक है, हमारा देखो एक्सप्रेशन क्या था? हमारा एक्सप्रेशन है सम ऑफ डिस्काउंट, है ना? ठीक है। सम ऑफ डिस्काउंट, तो यहाँ पे सम ऑफ डिस्काउंट, लेकिन एक फिल्टर लगाएगा, वो फिल्टर क्या रहेगा? जनवरी का, ठीक है। तो ये आपने सम ऑफ द डिस्काउंट लगाया, सम के बाद ये पूरा आपने कॉलम डाला है एक कोई, या पर्टिकुलर पूरा आपने वो डाल दिया रोल? ये एक मेजर बनाया हमने, ओके ठीक है। हमने क्या बोला, जहाँ पे हमने क्या किया था, हम लोग यहाँ से गए थे। आप कहीं से भी बना कहीं से भी सकते हो, आप लोग यहाँ से भी न्यू कॉलम न्यू मेजर्स कर सकते हो, ठीक है। बट जस्ट मैं यहाँ पे दिखता है न्यू कॉलम, इसलिए मैंने यहाँ से बनाया था। हमने जब पहले लगाया था, अपने मेजर बनाया था, वो अपने ऐसे लगाया था कि प्रोडक्ट की और उसका 10% निकाला था ना डिस्काउंट पे। नहीं, वो कॉलम क्रिएट किया था हमने, वो कॉलम क्रिएट किया रहा था, उसके बाद हमने मेजर लगा दिए, ये पूरे उस पे लगा दिए चार्ट पे, पूरे कॉलम पे। कॉलम डिस्काउंट पे, हाँ, एक डिस्काउंट वाले कॉलम पे, कॉलम। मेजर कॉलम पे लगता है, ठीक है। ठीक है। बट आपके जो पूरे अपने खोला था ना, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा था, पूरे चार्ट का नाम आ रहा था आई थिंक सो। हाँ, तो वही ना, देखो ना, तो वही ना, मतलब हमने क्या किया, देखो एक कॉलम बनाया हमने, हाँ। हमने एक कॉलम बनाया डिस्काउंट, कौन से टेबल में है ये है एडवेंचर वर्क से, हाँ जी, सेल्स 2015, है ना? मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वही तो बोले ना कि इस पर्टिकुलर टेबल का ये कॉलम का इस सम पर्टिकुलर टेबल का डिस्काउंट का, ठीक है। ओके। सो तो अब हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ डिस्काउंट फॉर दिस पर्टिकुलर जनवरी मंथ, सम ऑफ डिस्काउंट फॉर दिस पर्टिकुलर फरवरी मंथ, सम ऑफ डिस्काउंट ऐसा। सो बेसिकली अब क्या हो रहा है, ये एक तरह से एक फिल्टर लगा के कर रहा है अपने ऊपर। ओके, क्लियर इतना सबको? गाइस 100% क्लियर ना? फिल्टर रो, व्हाट इज रो कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट इज फिल्टर कॉन्टेक्स्ट? या ओके, सो ये चीज हो गई कि कॉलम जो है that works on row context and measures work on filter context and बस इतना ही है। मेजरली 3 डिफरेंस है, बाकी यूज कहाँ पे करते हैं, जब आपको जैसे मान लो यूनिक वैल्यूज के साथ खेलना हो, मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम में कितनी यूनिक वैल्यू है, मतलब कोई भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हो और कैलकुलेशंस आपको देखना है कितनी यूनिक वैल्यू जनरेट हो रही है। तो फॉर एग्जांपल यूनिक वैल्यू कहाँ का यूज कर सकते हो आप? फिल्टर्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। आप स्लाइसेस वगैरह में यूज कर सकते हो, ठीक है। सो जब आपको ऐसा कुछ करना होगा तब देन यू विल गो विद द कॉलम्स, लाइक न्यू कॉलम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को देखना है कितने डिस्टिंक्ट डिस्काउंट वैल्यू है, ठीक है।
तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका एक कॉलम क्रिएट करूंगा और फिर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा, सपोज लेट्स से स्लाइसर बनाता हूँ, एक बाहर से लेके एक स्लाइसर बनाता हूँ, ठीक है। स्लाइसर पे मैं डालता हूँ कि कितने यूनिक वैल्यूज हैं, कितने यूनिक वैल्यूज हैं। अरे यार सर मेजर एक्चुअली माय बैड, डिस्काउंट, ठीक है। मतलब अगर मुझे उसको स्लाइसर में यूज करना है तो मुझे उसको एज अ कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे सॉरी अगर उसको एज अ मेरे को स्लाइसर यूज करना है तो उसको मुझे कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। मैं मेजर को स्लाइसर में यूज नहीं कर सकता, ओके ठीक है। तो जब आपको लाइक बेसिकली ऐसा समझो कि जब आपको कोई भी फिल्टरिंग के लिए यूज करना है कॉलम को, या फिर यूनिक वैल्यू पे काम करना है, तब आप कॉलम, न्यू कॉलम क्रिएट करोगे, ओके। भाई एक बार मेजर दोबारा लगा के दिखाना किसी पे। मुझे दोबारा लगा के दिखाना किसी पे। चलो लेट्स से हमें टोटल कस्टमर की का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो नथिंग बट सिंपल मीनिंग में यही हुआ ना कि जो जो हमारे पास कॉलम्स अवेलेबल है वी कैन यूज इट एज अ पार्ट ऑफ स्लाइसर, राइट। स्लाइसर में जो जो कॉलम अवेलेबल है हमारे पास, यस बट जो मेजर है जो हमको दिख नहीं रहा वो हम एज अ इसमें यूज भी नहीं कर सकते स्लाइसर में। स्लाइसर में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो द पॉइंट इज, अगर आपको कुछ चीज स्लाइसर वगैरह फिल्टरिंग के लिए यूज करनी है तो आप न्यू कॉलम क्रिएट करोगे, न्यू कॉलम, यस गॉट इट। ठीक है। हाँ आप क्या बोल रहे हो प्रीत, आप बोल रहे हाँ, हो मेजर पे मेजर को एक बार, हाँ जी एक बार देखा मैंने। देखो, एक काम करते हैं, मैं पूरा हटा देता हूँ, ठीक है। जितना चीज किया हाँ हाँ इसको हटा देता हूँ, ठीक है। Delete and delete this. लेट्स से, चलो एक चीज देखो, चलो मान लो मैं बोलता हूँ कि मुझे सम ऑफ प्रोडक्ट की चाहिए सबका, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट की, ठीक है। प्रोडक्ट, अगर मान लो मैं न्यू कॉलम से क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ सम ऑफ प्रोडक्ट की, लेट्स से न्यू कॉलम, ओके। सो न्यू कॉलम से क्रिएट किया सम ऑफ प्रोडक्ट की, बट न्यू कॉलम में क्या बोल रहा हूँ मैं, लेट्स से मैं बोलता हूँ सम ऑफ प्रोड की कॉलम, क्योंकि कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ ना मैं। तो मैं बोलता हूँ जैसे कि नाम से समझिए सम ऑफ प्रोडक्ट की, ठीक है। अभी एंटर, देखो अब सम ऑफ प्रोडक्ट की टोटल आएगा, ठीक है। अब एक चीज और, ये सम ऑफ प्रोडक्ट की आपने लगाया है, ये जैसे 350 है, तो ये टोटल किससे मतलब इनटू होके आ रहा है, कस्टमर की से किससे, नहीं, या हाँ भाई, टोटल पूरे इसका? हाँ ये टोटल है इसका, बट ये तो अच्छा सेम ही है, इस पे आ रहा है हाँ। 19015, तो ये ठीक है सेम पे है ना, तो देखो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक तो इसको हम देखो, अब ये चीज यहाँ पे कोई मतलब बनता है इसका, है। नहीं, तो ये तो हमें इसलिए नीचे लानी चाहिए ना, टोटल नीचे इसलिए भी। इसलिए जब हम कोई ऐसा कुछ करते हैं, सम वगैरह हो गया, एवरेज वगैरह हो गया, जो हमें कॉलम लेवल पे करना है, तब हम उसको एज अ न्यू कॉलम क्रिएट नहीं करते, हम उसको एज अ न्यू मेजर क्रिएट करते हैं, ओके, ठीक है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको, ओके। सो हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको हटा देते हाँ हैं, वो इसकी कॉलम की, ठीक है। फिर ऐसे जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अगर हमें कोई चीज रो लेवल पे करनी होती है, जैसे मान लो इसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अगर कोई चीज इसी के बदले ऐसे करनी होती है, मान लो इसी के आप बदले, इनकी एवरेज निकाल दो, या फिर इनको सम कर दो प्रोडक्ट की या कस्टमर की से, मतलब इनटू या सम पे, ठीक है। तो या लेट्स फिर इन से, पे। हाँ अगर कुछ ऐसा करना होता, जैसे अभी आप बोल रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो कुछ ऐसा करना होता, प्रोडक्ट की प्लस कस्टमर, ठीक है ना। जब कुछ ऐसा करना होता, अब क्योंकि हमें यहाँ पे सब कुछ रो बाय रो करना है, तो यहाँ पे हम न्यू कॉलम सेलेक्ट करेंगे, राइट, ठीक है, समझ ये आ गए? गया, अब समझ। हाँ जी भाई, अब बढ़िया। ठीक है। और जब आपको मेजर क्रिएट करना है, जब आपको पूरे कॉलम पे करना है, तो आप कॉलम क्रिएट नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे, मुझे एक नया मेजर क्रिएट करना है, तो वो मेजर क्या होगा मेरा, सम ऑफ, लेट्स से एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एवरेज ऑफ, लेट्स से एवरेज ऑफ इसकी ले लो ना, सम ऑफ प्लॉट की। एवरेज ऑफ, लेट्स से कस्टमर की, ठीक है।
कस्टमर की, ठीक है। तो एवरेज ऑफ कस्टमर की क्या है, एवी एवरेज ऑफ कस्टमर की, ठीक है। तो ये एक वैल्यू बन जाएगी, बट इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है क्योंकि डिपेंड करता है कि मैं इसको कैसे किसके साथ यूज अभी हमें करूंगा। देख नहीं सकते हम इसको। उसको हमें दिखेगा नहीं, इसको हम जब चार्ट में यूज करेंगे किसी वैल्यू वाले फील्ड में तो वहां दिखेगा, ठीक है। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग है इसका एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो कैलकुलेटर जैसा कॉलम बन जाता है, कैलकुलेटर जैसा आइकन बन जाता है। और जब कॉलम क्रिएट करोगे कहाँ गया, सम ऑफ प्रोडक्ट की ना, ये भी सेम ही है वैसे ही। नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट की का ये देखो कैलकुलेटेड कॉलम, ये कैलकुलेटेड कॉलम है, ये मेजर है, मेजर है। और ये नीचे सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी है, ये भी एक मेजर लगा हुआ कोई। मेजर है, ये भी एक मेजर है, ओके, ठीक है। ये क्या है, ये क्या बोलता है कि ये जो कॉलम है ये न्यूमेरिकल कॉलम है और आप इस पे एग्रीगेशन कर सकते हो। ये टेरिटरी की वैल्यू पे, हाँ, मेरा टेरिटरी की वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। आप इस पे एग्रीगेशंस कर सकते हो, मतलब सम एवरेज ये सब कर सकते हो। सिमिलरली प्रोडक्ट की देखो, प्रोडक्ट की जितने भी नंबर वाले हैं सबके सामने ये समेशन वाला साइन होगा, मतलब क्या बट आप ये भाई ऊपर क्यों नहीं आ रहा लिखा हुआ, जैसे पहले बना हुआ आता था ऑर्डर पे 1 2 3 आता था, उस पे वो नंबर्स तो आते थे। वो तो उस पे ना पावर क्वेरी पे रहोगे तब आएगा, ओके, ठीक है। ठीक है भाई। गाइस इतना क्लियर आज हमने जो किया, एकदम या 100% क्लियर है। हाँ भाई, ये अब क्लियर हुआ, पहले तो ऊपर से चला गया था मेरे। ओके, नो वरीज, इतना इतना एकदम 100% क्लियर है गाइस सबको। ये तो है। ओके, अभी देखो एक लास्ट चीज होती है एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट मेजर। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट मेजर। ओके, वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं। भाई एक चीज और नहीं समझ आई, जब आप ये इसमें रोज में डालते हो, जैसे राइट साइड में विजुलाइज के लिए वैल्यूज को वैल्यूज में, जैसे एक्सिस बनाने है उसको लग गई, ये कैसे हम चूज करते हैं, कॉलम रो कैसे करेंगे ये सब देखेंगे हम जब विजुलाइजेशन क्रिएट करेंगे, तो टेंशन नहीं। ओके, तो लेट्स से यहाँ पे मान लो मैंने डाला, लेट्स से अगेन बाय टेरिटरी, ओके बाय टेरिटरी वी वांट टू, लेट्स से देखो लेट्स से मैं बोलता हूँ मुझे सम ऑफ, क्या था ये, प्रोडक्ट की ना, नहीं ये रहा सम ऑफ, नीचे वाला था। हाँ सम ऑफ, ये रहा एवरेज ऑफ कस्टमर की, है ना, ये हमारा एक मेजर था। चलो मैं इसको लेता हूँ, ठीक है। देखो अभी आंसर कुछ कुछ है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ कस्टमर की को लूं, देखो एवरेज ऑफ कस्टमर की ले रहा हूँ, यहाँ पे लेके मैं इसको एवरेज कर सकता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। आपने क्या करा है, उसको उसमें डाल के वैल्यूज में डाल के एवरेज में ऐड कर दिया। देखो पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने कैलकुलेट किया था एवरेज, देख रहे हो, पहले मैंने एवरेज कैलकुलेट किया फिर ड्रैग किया। नहीं, एक पे तो मेजर लगा हुआ था, वो तो उस पे लगा हुआ था, हाँ, एवरेज ऑफ कस्टमर पे। सेकंड वाले में क्या किया? सेकंड वाले में क्या किया, देखो सेकंड वाले में हमने क्या किया, हमने कस्टमर की एज इट इज पुल किया यहाँ पे, राइट। और फिर उसका जो एग्रीगेशन मेथड था उसको हमने चेंज कर दिया एवरेज। Bro, can I say you, like in Excel we'll use pivots, right? For values we'll use in values. For averages we use in values now. Yes. Happen here also, na? Power. Yes. We can do it. Okay. So my point here is, if you see, I am getting same result with both different approaches, right? मींस कि अगर हमने किसी में मेजर नहीं लगाया और हमें एवरेज चाहिए, तो हम यहाँ पे विजुलाइज में जाके एवरेज सम कुछ भी चाहिए हम उसमें कर सकते हैं डायरेक्टली। कर सकते हैं। ओके, और ये जो हमारे कॉलम में चेंज नहीं होगा, जो हमारे पास रॉ डेटा पड़ा उसमें चेंज नहीं होगा अभी, रॉ डेटा में आपने दोनों केस में रॉ डेटा पे कुछ चेंजेस नहीं होगा। अच्छा, दोनों केस में नहीं होगा, ठीक है। सो गाइस इतना दोनों लाइक आप लोगों को दोनों अप्रोच समझे, लाइक एक क्या है कि मैं मेजर क्रिएट कर लूं, और दूसरा क्या है कि मैं सिर्फ डायरेक्टली कॉलम को ड्रैग करके then I'll change the aggregation method, right? Yes. So ये जो दोनों मेथड है, इनमें से जब हम बाहर कैलकुलेशन करते हैं, राइट, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने पहले कैलकुलेशन कर लिया फिर उसको विजुलाइजेशन में लाया, राइट? यस, लाइक क्लियर है इसमें कि कुछ डाउट है? क्लियर है। ओके, तो जब हमने बाहर कैलकुलेशन किया और उसको अंदर लाए बाद में,
So इसको बोलते हैं explicit measures. एक्सप्लिसिट आप लिख के दे देना भाई। Explicit. Explicit. ओके Okay. EXPLICIT. Okay. Explicit measure. एंड दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं, जब हमने क्या किया, हमने पहले कॉलम को ड्रैग किया फिर एग्रीगेशन मेथड डिफाइन किया। ओके, सो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट मेजर्स। ओके ओके ओके, एक्सप्लिसिट मेजर एंड इम्प्लिसिट मेजर। चलो, अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है? पहली बात तो इम्प्लिसिट मेजर को आप अगर मान लो मैं एक और विजुअलाइजेशन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, एक और विजुअलाइजेशन क्रिएट करता हूँ, लेट्स से एक और विजुअलाइजेशन क्रिएट करता हूँ, लेट्स से सेम विजुअलाइजेशन क्रिएट करें दोबारा, ठीक है, जैसे सेम टू सेम विजुअलाइजेशन दोबारा क्रिएट करते हैं। ओके, एंड मैं इसको फिर से मैं ड्रैग कर सकता हूँ, मतलब मैं क्या करता हूँ, इसको रीयूज कर सकता हूँ। ओके, इसको मैं रीयूज कर सकता हूँ मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। इम्प्लिसिट मेजर को क्या करना पड़ेगा? इम्प्लिसिट मेजर्स को मुझे फिर से क्रिएट करके एंड फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब क्या? इम्प्लिसिट मेजर्स मुझे बार बार क्रिएट करने पड़ेंगे, रिपीट करना है। हाँ, इम्प्लिसिट मींस की वही होगा कि मतलब एक फिल्टर पे हमने लगाया, जैसे एक विजुअलाइज पे लगाया, सेकंड पे करने के लिए हमें फिर करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से मेजर ऐड नहीं है उसमें, अपने यूज के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा उसे। यस, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि इम्प्लिसिट मेजर आप रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते, मतलब या फिर आप उसको रीयूज नहीं कर सकते हो। ओके, दिस इज वन ड्रॉबैक, ठीक है। सो इसलिए हमेशा अवॉइड यूजिंग इम्प्लिसिट मेजर्स, ठीक है। इम्प्लिसिट तब कर सकते हैं जैसे हमने मतलब कुछ चेंज करना है, जैसे हमने सेकंड विजुअलाइज में हमने एवरेज की जगह कुछ सम निकालना है, कुछ और निकालना है, तब उस पे यूज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, ठीक है, एक्चुअली हर जगह यूज कर सकते हो, बट देन प्रॉब्लम इज कि यू शुड अवॉइड इम्प्लिसिट। क्यों? क्योंकि यार फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, मुझे अंदर जाके देखना पड़ रहा है कि क्या उसमें किस टाइप का एग्रीगेशन लगा हुआ है। ओके, एंड देयर इज अ चांस कि कोई गलती से आके चेंज कर दिया, गलती से यहाँ पे क्लिक कर दिया, मतलब मैं देख रहा था एग्रीगेशन क्या है एंड क्लोज करते टाइम गलती से यहाँ पे क्लिक होके चेंज हो गया एंड मैंने ध्यान नहीं दिया एंड वो रिपोर्ट गलत हो गई, है ना, ये चीज हो सकता है। तो इससे अच्छा क्या है, आप हर चीज को जितने भी कैलकुलेशंस करने हैं जनरली आप उसको सेपरेटली मेजर्स क्रिएट कर लो एंड देन you will and then use those measures. Okay, so this is the first thing. Second thing is, if you see, I can, if I want to create another, let's say either calculated column or calculated or let's say new measure, what I can do is, if I let's say create a new measure, or let's say even with the same same thing with the new column as well. So here you see I can use the explicit measures that I have defined, right? Right, I can use my measures that I have defined. So the point is, अगर मैं explicitly measures create करता हूँ तो I can reuse them in DAX expression as well. Okay, अब इसको यूज कैसे करेंगे? जैसे एवरेज वाला एक कॉलम ये लगा हुआ है, हाँ, अब हमने एक और मेजर लगाना है। okay, इतना क्लियर है जितना मैंने बोला। देखो, अब मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली यूज करके दिखाता हूँ कैसे होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से we'll delete everything. Okay, we'll just get a new table altogether. Let's go and delete everything. Okay. समझने के हिसाब से क्लियर होगा ना, थोड़ा बहुत आइडिया। लेट्स से 80% क्लियर है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग? 80% क्लियर है? हाँ जी भाई। Yes, yes. Okay, so let's delete everything. Okay, let's delete from the model. Okay, I'll what I'll do is I'll go here and in the model itself I'll cancel it and I'll go to here and I'll delete this one completely. Okay, I'll delete from model and press it delete and get data and let's get the fresh file. Okay, let's say save on screen.
it doesn't matter कौन सी file ले लो, so everything is fine. Okay, so I'll transform the data. Actually not delete because the data is pretty much same, so we'll just load it for now. So, but as a good practice, you should always go into the transform window and then check the data manually again. Okay, so once we have the table, if it allows me, okay. So see, suppose if I say, so suppose let's say I'll just change this column name to something, let's say rename, we'll call this, let's say price for now. Okay, so suppose this is a price, this is the price, and let's say I want to let's say get a discount price. Okay, so I'll go with the new column. Okay, so I'll go with the new column because the discounted price will be individual for each row, right guys? The discounted price will be individual for each row. बट जो प्राइस है सबका सेम ही आ रहा है, वो सेम ही आएगा, कुछ और को करते हैं आप, अलग अलग भी है, अलग अलग भी है, डोंट वरी. ठीक है ठीक है ठीक है. So since it will be at row level, what we'll do is we will create a new column, and let's say suppose if I want to get let's say I want to give a discount, let's say discount price, and let's say I want to give a discount of 10%, that is 0.9 into that is price. Okay, that is price, and over top of it I want to give a 10 rupees extra discount. Okay, something like this. Okay, आपने जब माइनस आएगा ना फिर, sorry, माइनस आएगा ना 10. my bad. Okay, so like 10% discount, and on the top of that 10 rupees extra discount. So let's say if I hit enter, I'll get a new column that will be my discounted price. Okay, now I want to see how much difference in the price, like how much difference in the total money I'm getting. So what I can do is I can create a new measure, and let's say we'll call it total price. Okay, total price, and it will be sum of, let's say, sum of price. Okay, this is the total price that was before discount, right? Yes. And finally I can have one more measure that will be total price after discount. Okay, so let's say we'll say total price after discount. So it will be sum of discounted price, right? Discount price. ये ब्रैकेट जरूर लगाना लास्ट में इनको क्लोजिंग पे टाइम. हाँ, सम के लिए वो सम का फंक्शन है ना, मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में फंक्शन कैसे यूज करते हैं. ठीक है. So we have two measures, right? Total price and the total price after discount. Okay, so now if I want to see what is the difference between these two, okay, like दोनों में difference कितना हुआ है, so what I can do is I can create one more measure. Okay, I can create one more measure, and let's say we'll call it, let's say actual discount, right? It's a total discount. So total discount is nothing but total price minus Total price after discount. Price after discount. Right? Yes. So that will be my total. So if you see now, I can reuse the table, like reuse the calculation measures. sorry, measures. Yeah. So instead of, so like we will see how we can like we have created three measures, right? So we can like down the line we'll see how we can combine all this into a single one. But then my idea is the thing that I wanted to show is like we can reuse the explicit measures. Okay. Yeah. So
since that now, let's see how it will be useful in visualizations. Okay, so let's say we can come here, or let's say we'll stay here only, and we'll select this one, and we'll just remove the previous one. Okay, so let's say I have for each territory, for each, let's say territory, okay, for each territory, for each territory, let's say my total price before discount, okay, my price after discount, and my price, like what is the difference between these two prices. Okay, सारे एक ही टेबल में comparison कर सकते हैं, right? So now you can have a very clear picture, right? Yes. So this way, like this is how you use measures and columns. Okay. Yep. So suppose now if you see, let's say, now let's say we want to see like कहाँ पे let's say 100 rupees का discount हुआ है, कहाँ पे 200 rupees का discount हुआ है. Okay. So what we can do here is we can, so right now if you see, even though I have a difference in the sales, right, like I can see कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना difference है, like यहाँ पे 4,000 का है, यहाँ पे 3,000 का है. I cannot filter the data based upon the difference. Like for example, if I had to filter कि हाँ भाई मुझे देखना है कि like 5,000 से लेके 10,000 तक का difference कितने जगह पे आ रहा है. Okay. Okay. I cannot do right now because मेरे पास कोई ऐसा column नहीं है जो इस चीज को define करे. Okay, so if I have to do some kind of filtering, right, then I will again have to create a new column. So let's say I'll create a new column, and let's say I'll create a new column, and let's say I'll say what I will call it. Let's say we'll call it price difference. Okay, price difference, and let's say this will be nothing but price. Sorry. Price minus discount price, right? So what I'll do is I'll just enter here, and I'll just remove all the, let's say I'll just decimal, I'll remove all the decimals. Okay, so let's say I'll convert it to whole number. Okay, and there should be some option to this one. Okay, I can get this value and then 45, right? Round the number to the specified digit play. Some round number, physical number. Let's say I want to round it up to, let's say 5, multiple of 5. Like 5, अगर वो number 1 है तो 0 हो जाएगा, number 4 है तो 5 बन जाएगा अपना, मतलब या तो 0 होगा या तो 5 होगा या तो 10 होगा, ठीक है? Or let's say you want to have it rounded up to multiple of 10. Okay, so if you see I don't have any number between, ऐसा कुछ छोटा मोटा नंबर नहीं, सब 50 से 100 के बीच में, ठीक है ना? Like 50 है, 60 है, ऐसा. So now if I had to do a filtering, so now I can do a filtering because मेरे पास एक column created है, so I can use a slicer. Okay, I can use a slicer, and then now I can drag this one. Is the price difference. Okay, देखो price difference हमने यहाँ भी निकाला था. Okay, but then मैं इसको use नहीं कर सकता हूँ, but मैं एक calculate column को use कर सकता हूँ. Okay, so if you want this style, you can go with this one, or else इसका style भी change करने का तरीका होता है कहीं पे. So slicer header नहीं चाहिए, slider नहीं चाहिए. Okay, actually तो ही है, slider नहीं चाहिए. Unique values कुछ तो होता है इसका. Show as table.
Okay, so edit me. But then my point is, you can now use it as a like you can now use it as a filter. कि मैं बोलता हूँ like जहाँ पे मेरा discount is between 40 and let's say 60%. Okay, so I can use that filter now. Okay. Just because I have created a new column for that. अगर मेरे पास measure होता तो I could not have. So अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मेरे पास column ना हो, सिर्फ measure हो, तो जैसे measure मेरे पास है भी, तो मैं उसको use नहीं कर सकता हूँ. Okay. Up to this point is clear. Everybody is clear up to this point. Yep. So like today, what we have seen is what is DAX, what is new column, what is new measure, and what are the different types of measure, that is implicit and explicit. भाई ये जो डिफरेंस आपने निकाला था, ये हम चेंज कर रहे थे, ये फिल्टर में अपने आप चेंज हो रहा है, जो हमारे फिल्टर लगे हुए हैं मेजर्स में. यहाँ पे ना, हाँ, जब आप स्लाइसर यूज करोगे तो होगा ही ना. वो सब देखेंगे हम, इंटरेक्शन वगैरह कैसे कंट्रोल करते हैं. we'll see once we start getting there. Okay, so जब आप यहाँ पे करोगे, so वो बट आपने जो डिफरेंस निकाला था यहाँ पे, जो कॉलम आ रहे थे उसमें वैल्यूज जो आ रही थी वो कौन सी आ रही थी? सॉरी, आपने जो वैल्यू, हाँ, आपने जो फिल्टर लगाया था यहाँ पे प्राइस डिफरेंस वाला, तो वो जो वैल्यूज आ रही थी दोनों कॉलम्स में, वो किसकी आ रही थी? कौन से दोनों कॉलम में? ये ना, जिससे पहले लगाया था. यार वो पहले भी वही यही वैल्यू आई थी 30 40 50 60 70 वाली, खाली एक वो तरफ 30 से एक तरफ 60 से जैसे. हाँ, वो स्लाइडर के फॉर्म में आ रही थी. तो खाली वो मैं भूल गया कि स्लाइडर का चेंज स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, यहीं से कहीं से करते हैं. बट उसको स्लाइडर बनाना, लाइक उसको स्लाइडर रखना है या फिर कैसे रखना है, उसका कुछ तरीका होता है. आई फॉरगॉट. हाँ, ये रहा. अगर आपको स्लाइडर चाहिए तो बिटवीन ऐसा. ओके, तो ये था. तो अभी अब खाली यहाँ पे सारी यूनिक वैल्यूज आए हैं. तो 30 कहाँ पे 30 रुपीज का डिस्काउंट है, जहाँ यहाँ पे 30 वाला है सिर्फ वही रेट आएगा. देख लो, पे 94 था, 40 पे करोगे तो चेंज हो जाएगा. जहाँ पे 50 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 90 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, वो भी है. ठीक है. सो आई होप इतना क्लियर है. आई वुड से कि थोड़ा प्रैक्टिस करो and start creating some calculations, and then once you are done, in next session we'll have a deeper look into all the functions that we have. Yep. Okay. यस. From this, फिल्टर्स वगैरह आपके हाथ से अपने आप लगाए, आपसे पूछ लेंगे मतलब इसमें डेटा में कोई चेंज करना है? नहीं, कुछ भी नहीं. फिल्टर्स क्या, जो मतलब जैसे हमारे माइंड में है, जैसे डिफरेंस निकालना है, जो मर्जी वो करो. एवरेज निकालो, वो निकालो, क्या बोलते हैं, डेविएशन आता है तो निकाल लो, सम निकालो, मल्टीप्लाई करो, मतलब प्रोडक्ट निकाल के करो, 4-5 कॉलम का एक साथ प्रोडक्ट करके करो. देखो कैसा होगा. काउंट निकालो, यूनिक काउंट वगैरह. we'll see about all these functions. Okay. Okay. So I hope this is clear, and with this the basic introduction for the DAX is over. Like I'm not saying DAX is complete, but then the intro part is only this part, and then we'll, from tomorrow, or like on Saturday, we'll see DAX functions for text data type and numerical data type. Okay. And then on Sunday either we'll go with the date one and also the calculate function. So basic idea अच्छा खासा हो जाएगा आप लोगों को लेक्चर इसका टैक्स का. भाई स्लो लेके चलना, मेरे को थोड़ा लेट समझ आता है. कोई दिक्कत नहीं, अभी भी वही है. और क्या. संडे को, हाँ मतलब सैटरडे को टाइम पे रहना. ठीक है ना. Yes. चलो प्रैक्टिस करें. just a second, let's stop recording and we are missing something. Anybody remember it? Oh yeah, Shashanka. Sorry. Tanka. Yeah. Okay. Hi.